Good evening, students. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So today we are going to learn about the discharge of contract. Okay. So we came to the end part of the contract, Indian Contract Act. Okay. So today we are going to learn about the discharge of contract. Okay. So what is called discharge of contract? क्या है discharge? What is the meaning of discharge? हाँ, खत्म होना, ठीक है? Means you have ended the contract, okay? The contract is no more. Fine. So there are few modes of discharge. Okay, there are few modes of discharge. So discharge of contract means termination or elimination of contractual relation between the parties. Okay, termination or elimination of contractual relation. By discharge, the rights and obligations created by the contract will come to an end, for which it will be no longer binding upon the parties. Suppose A is a person, okay? A went to a mobile shop. A went to a mobile shop. And B is a sailor. B is a sailor. ठीक है? तो B को बोला A ने कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए. I need a mobile phone of this company. Suppose MI का एक फ़ोन चाहिए. तो ये कितना है? तो B ने बोला आपको how much he has to pay? A has to pay rupees 20,000 amount. Okay? After that, A ने क्या किया? B से खरीदा. क्या खरीदा? मोबाइल फ़ोन खरीदा और A ने अपना अमाउंट जो 20,000 है वो किसको दे दिया? किसको दे दिया? B को दे दिया. And he got the ownership. He got the ownership. The papers, the documents, the title, the ownership has been transferred to A. Has been transferred to A. So when a person gets the ownership or the title, okay, तो उसका परफॉर्मेंस भी खत्म हो गया और किसका परफॉर्मेंस खत्म हो गया? जो बी है, जो सेलर है. सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड. ओके, उन दोनों का परफॉर्मेंस खत्म हो गया है. इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Any doubt? What? Okay. Any doubt, online students? No, ma'am. Fine. So now we are going to learn about this modes of discharge. What are the different kinds of modes? First one is by performance, by agreement. Next, third, by lapse of time. Fourth, by operation of law. Fifth, by impossibility of performance. Sixth, by breach of contract. ठीक है? These are the modes of discharge. Okay? Fine? Now first, by performance. Performance. Performance may be actual or attempted. Actual performance is the fulfillment of the obligations arising from a contract by the parties. Attempted performance means offer of performance. ठीक है? मतलब क्या हुआ? Actual और attempted. Actual मतलब जैसे मैंने बोला ना, दोनों के बीच में परफॉर्मेंस हुआ. ओके, मैंने मोबाइल फोन मुझे चाहिए था, ए को मोबाइल फोन चाहिए था, बी से मांगा, बी ने दे दिया मोबाइल फोन, ए ने अपना पैसा भी दे दिया. तो दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस था वो कंप्लीटेड.
ओके, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंडेड। जब उन दोनों का एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब हो रहा था, तो उन दोनों के बीच में क्या था? ऑब्लिगेशंस था, है ना? ऑब्लिगेशंस था। क्या ऑब्लिगेशंस था? कि मुझे मोबाइल फोन चाहिए, से बायर को क्या चाहिए था? मोबाइल फोन चाहिए था, एंड बायर हैज टू पे द अमाउंट टू द सेलर। और सेलर का क्या ऑब्लिगेशन था? कि उसको अपना मोबाइल, वो जो अपना जो शॉप में जो मोबाइल फोन है, उससे एक मोबाइल फोन किसको देना है? किसको देना है? बायर को देना है, एंड द सेलर शुड गेट द अमाउंट। सो दोनों के बीच में जो ऑब्लिगेशन था, that obligation both of them have fulfilled, both of them have completed, and their performance, the actual performance took place. So that is called the performance mode of, ठीक है? डिस्चार्ज का मोड जो है बाय परफॉर्मेंस, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स, जैसे मैं कहीं गई, मैंने किसी डीलर के, कार के डीलर के पास गया, ठीक है, और मैंने वहाँ पे जाके बोला कि मुझे देखो एक ब्रेजा कार चाहिए, मारुति ब्रेजा कार चाहिए। तो आई हैव गिवन माई ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो सेलर है, उन्होंने मुझे बोला कि फाइन, यू नीड अ ब्रेजा कार, नाउ वी डोंट हैव द ब्रेजा कार, यू विल गेट आफ्टर 2 or 3 months। ठीक है, वो परफॉर्मेंस, एक साइड का परफॉर्मेंस क्या दिया? ऑफर दिया। और जो सेकंड, जो ऑपोजिट पार्टी का जो परफॉर्मेंस जिसको करना था, जिसका ऑब्लिगेशन है, दैट परफॉर्मेंस विल बी फुलफिल्ड बाय आफ्टर 2 or 3 months or 4 months, like that. Is it clear? Excuse me, students, online students, am I audible? Yes, ma'am. Audible? Yes, ma'am. শুনি পাইছা তোমালোকে? Yes, ma'am. শুনি পাইছা? Yes, ma'am. কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি বুজি পাবলে? কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি বুজি পাবলে? No, ma'am. So is it clear? Here I have given one example. A makes contract to sell her house to B. Between A and B, one contract has been made. What contract? A makes contract to sell her house. A के पास क्या है? एक house है, एक घर है, और वो अपना घर किसको सेल करना चाहता है? B को, at amount rupees 30 lakhs. ठीक है? Here when B pays rupees 30 lakhs and take possession of the house, possession ले लिया house का, the contract is deemed to be complete because both the parties have fulfilled their promises. Is it clear? समझ में आ गया? A ने भी कंप्लीट कर लिया अपना परफॉर्मेंस, B ने भी कंप्लीट कर दिया। A को क्या चाहिए था? अमाउंट कितना चाहिए था? 30 lakhs। और B को क्या चाहिए था? हाउस। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? Shall I go to the next slide? Now, by agreement. By agreement means by mutual consent of agreement. By mutual consent or agreement. Okay? So, by agreement, a kind of this called novation. Novation का मतलब क्या है? Novation का मतलब? Novation means new. Novation means new. ओके, मेरे और किसके बीच में? मेरे और राज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब जैसे राज का एक शॉप है, ठीक है, राज तुम्हारा क्या है? एक शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी का शॉप है, और मैं जाके तुम्हारे शॉप में जाके मैंने बोला कि मुझे
क्या चाहिए? मुझे 10 kg का राइस चाहिए। कब चाहिए? मैंने बोला कि तुम मुझे आफ्टर 3 days मुझे दे देना। ओके, आफ्टर 3 days मुझे दे देना। ठीक है, तो मैंने तुमको बोला, क्या बोला कि मुझे राइस चाहिए। कितना अमाउंट का? 10 kg का चाहिए। ठीक है, तो बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने तुमसे क्या बोला कि राज देखो, मैंने तो तुम्हें बोला था कि आफ्टर 3 days यू हैव टू गिव मी व्हाट 10 kgs ऑफ राइस एट अमाउंट 60 rupees पर kg। ठीक है, ठीक है, क्या चाहिए था? बासमती राइस चाहिए था। ठीक है, 60 rupees पर kg। तो अब क्या हुआ, जब डिलीवरी जिस दिन तुम दोगे उसके एक दिन पहले मैंने तुम्हें फोन किया। फोन करके मैंने बोला कि आई डोंट नीड दैट राइस, इंस्टेड ऑफ दैट यू गिव मी क्या 10 kgs ऑफ क्या चाहिए? मुझे आटा चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड न्यू एग्रीमेंट। समझ में आया? मैंने राज के साथ, मेरा और राज का क्या एग्रीमेंट हुआ था कि राइस मुझे चाहिए, मैं 10 kg मुझे राइस चाहिए और राज मुझे आफ्टर 3 days ही विल डिलीवर द राइस। ठीक है, एट माय होम। लेकिन उसके पहले ही, डिलीवरी के पहले ही मैंने एक नया एग्रीमेंट फिर कर दिया। क्या बोला कि इंस्टेड ऑफ राइस यू हैव टू गिव मी 10 kgs ऑफ व्हीट फ्लो, मतलब गेहूं। ठीक है, समझ में आ गया? Is it clear? This is called novation. Okay? See, existing contract is replaced by a new contract. The new contract may be between the same parties or between different parties. सेम पार्टी भी हो सकता है, नहीं तो कोई दूसरे पार्टी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ए इज अ फादर, ठीक है, और ए से मुझे राइस चाहिए था, तो ए नहीं होके ए का बेटा है, फादर के जगह उसका बेटा है, तो बेटे के मेरे बीच में हो सकता है एग्रीमेंट। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड दिस वन? Now alteration. What is called alteration? Alteration means change in terms of original contract by mutual consent. Here the parties remain the same, but there can be change regarding time, place, quantity or price, etc. अब अगर टाइम चेंज हुआ, जैसे 3 days के बाद मुझे क्या चाहिए था? गेहूं, राइस तो मैंने बोला, फिर उसके बाद मैंने नया एग्रीमेंट किया। तो जैसे मैंने राइस का ही बोला कि मुझे राइस चाहिए 3 दिन के बाद, तो मैंने फिर क्या किया? फिर मैंने अल्टर कर दिया। मैंने बोला नहीं, नॉट 3 days, मुझे आफ्टर 7 days मुझे दो। तो दैट इज कॉल्ड टाइम। प्लीज, जैसे तुम्हें मुझे डीपीएस में चाहिए था देने के लिए, क्या चाहिए था? डिलीवरी। I need a delivery of rice at my residence in DPS दुरियाजन। ठीक है, लेकिन फिर मैंने तुमको बोला नहीं, मुझे DPS में नहीं चाहिए, मुझे तुम तिनसुकिया में, मेरा एक घर है वहां पे तुम मुझे डिलीवरी दो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, क्वांटिटी। क्वांटिटी इन प्लेस ऑफ 10 kg आई विल से दैट नहीं, मुझे 10 kg नहीं चाहिए, मुझे 6 kg चाहिए। ओके, देन प्राइस। प्राइस मैंने बोला थोड़ा तो कमा दो, मुझे बार्गेनिंग किया, तो तुमने बोला ठीक है, आपको 60 रुपीस में मैं राइस देने वाला था, लेकिन मैं 60 रुपीस में नहीं दूंगा, मैं 55 रुपीस में दे रहा हूं। ओके, इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट वन इज रेसिशन। रेसिशन, व्हाट इज कॉल्ड रेसिशन? रेसिशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसको ही हम लोग ने कैंसिल कर दिया। दोनों पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसको कैंसिल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड रेसिशन। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज रेमिशन और वेवर। रेमिशन और वेवर। नींद आ रहा है ना? पानी पियो।
पियो पियो पानी पियो. Here, acceptance of a lesser or delayed fulfillment of a promise by the promisee. देखो, जैसे यहाँ पे है कौन? X. X कौन है? किरण. ठीक है? X कौन बन गया? किरण बन गया. किरण ने प्रॉमिस किया क्या? पेंट अ पिक्चर ऑफ Y. Y कौन है? Y है आकाश. ठीक है? Y है आकाश. आकाश का एक पिक्चर पेंट करने के लिए किसने प्रॉमिस किया? किरण ने प्रॉमिस किया. ठीक है? कि चलो आकाश, मैं तुम्हारा एक अच्छा सा एक फोटो, अच्छा सा पिक्चर बना दूंगा. आई एम प्रॉमिसिंग यू टुडे. तो आकाश ने क्या किया? आकाश ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए. ठीक है? आकाश ने मना कर दिया, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम किसी दूसरा का पिक्चर तुम बना लो, मेरा पिक्चर बनाने का, पेंट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एक्स इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस. इज इट क्लियर नाउ? This is called remission or waiver. Okay, fine. Is it clear? Online students, is it clear? Yes, ma'am. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. Okay, fine. By lapse of time. By lapse of time, contract must be performed within a specified period as prescribed by the law of limitation. Example, if a creditor does not file a case within 3 years of debt, the debt becomes time-barred and hence deprived of its legal remedy. Suppose किरण क्या है? क्रेडिटर. किरण से कौन पैसा लिया? आकाश पैसा लिया. ठीक है? 1 लाख का पैसा लिया, 1 लाख, और किरण को बोला कि विद इन 3 years आई विल पे माई डेप्ट. ठीक है? लेकिन किरण रुक रहा है, 3 साल हो गया. फिर किरण ने फोन किया आकाश को, आकाश फोन नहीं उठा रहा है. ठीक है? आकाश बोला है कौन देगा पैसा उसको. तो क्या क्या? विद इन 3 years if a person will unable to pay his debt to the creditor, then the creditor can file a case. लेकिन अगर 3 years के बीच में हुआ, अगर 3 years lapse हो गया, then he cannot go for legal remedy. Is it clear? Any doubt? समझ में आ गया आकाश? आया तो? If a creditor does not file a case within 3 years of debt, मतलब क्या हुआ? किरण है, क्या है? क्रेडिटर है. ठीक है? आकाश क्या है? क्या है? हाँ, डेब्टर है. ठीक है? अब आकाश को पैसा चाहिए था, लोन चाहिए था. किससे? क्रेडिटर से, है ना? तो आकाश ने जब लोन चाहिए तो किससे लिया? किरण से लिया. किरण से कितना लिया? 1 लाख रुपीस. और आकाश ने बोला कि मैं तुम्हें भाई, मैं विद इन 3 years मैं तुम्हें पे कर दूंगा. तो एक पीरियड था. तो उस पीरियड के अंदर आकाश ने अपना डेप्ट क्लियर नहीं किया, रीपेमेंट नहीं किया. किसको नहीं किया? किरण को. तो किरण का तो पैसा लॉस हो रहा है ना. तो किरण ने क्या किया? अगर विद इन 3 years आकाश इज अनेबल टू पे द डेप्ट, पे हिज डेप्ट टू द क्रेडिटर, टू किरण. ठीक है? देन किरण कैन गो फॉर लीगल रेमेडी. But if the 3 years will be crossed, means there will be lapse of time, he cannot go for legal remedy. Who cannot go? The Kiran. मतलब the creditor cannot go for legal remedy. Is it clear? By lapse of time. Time lapse होने के बाद वो नहीं जा सकता है. ठीक है? Is it clear? नहीं, वो आपका जो ले रहा है ना पैसा, वो तो एक डॉक्यूमेंट बनेगा ना. वो डॉक्यूमेंट बनेगा कि आप ले रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा विद इन 3 years यू हैव टू पे.
तो 3 इयर्स के अंदर अगर पे नहीं किया तो ही विल फाइल अ केस. अगर 3 इयर्स खत्म हो चुका है और उसने दिया भी नहीं और तुमने केस भी फाइल नहीं किया तो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा वो टाइम. यू कैन नॉट गो फॉर लीगल रेमेडी. ओके, ठीक है. Online students, fine? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, just a minute. पानी मुझे by operation of law means on death of either party. Operation of law means अगर किसी पार्टी का डेथ हो गया, जैसे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे बीच और किरण के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है. क्या का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ. सपोज कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आई हैव अ प्रॉपर्टी, आई हैव अ हाउस, आई हैव टू सेल माय प्रॉपर्टी टू किरण. ठीक है, किरण बैठा है कि हाँ मुझे हाउस खरीदना है मैम से. तो हाउस खरीदने के पहले ही अगर मेरा डेथ हो जाता है देन व्हाट विल हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड. ठीक है, समझ में आ गया. इज इट क्लियर. बाय इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी यू नो, इंसॉल्वेंसी मतलब हाँ, इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट, यस बैंकरप्ट. तो उसमें भी आप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन. ठीक है. अनऑथराइज्ड मैटेरियल अल्टरेशन, अनऑथराइज्ड जो ऑथराइज नहीं है, जो मैटेरियल अल्टरेशन मतलब कोई चीज अगर मुझे कुछ चाहिए था, अनऑथराइज्ड जो मुझे कुछ, मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे ये चीज चाहिए तो उसके बदले तुमने कुछ और चीज दे दिया मतलब, तो क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो टर्मिनेटेड. ओके फाइन. देन मर्जर क्या है, मर्ज करना है ना. मर्ज करने में क्या चाहिए, एक सुपेरियर चाहिए और एक इंफीरियर. दो पार्टी के सेम लेवल में मर्ज नहीं हो सकता है. ठीक है, समझ में आ गया. कोलैबोरेट करना, मर्ज करना एक ही टाइप का है. जैसे मैं एग्जांपल बोलती हूँ, देखो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे क्या हुआ, ये मर्जर का एग्जांपल क्या दूं मैं. ओके, सपोज मैं क्या हूं, मुझे एक रेंट चाहिए था. ठीक है, मुझे एक रेंट चाहिए होगा. किससे रेंट चाहिए, मुझे किरण से रेंट चाहिए. ठीक है, किरण का क्या है, एक जमीन है. किरण का क्या है, एक जमीन है और वहां पे मुझे रेंट चाहिए. ठीक है, वहां पे मुझे रेंट चाहिए. ठीक है, तो अब क्या हो गया, मैं लीज पे मैंने रेंट ले लिया. ठीक है, एंड आई टुक इट फॉर 10 years. ठीक है, मैंने 10 years के लिए एक लीज डीड किया. समझ में आया. बिकॉज मैं किरण के जमीन पे अपना एक घर बना के रहना चाहता हूँ, तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने रेंट पे लिया ना वो जमीन. तो रेंट पे जब मैंने जमीन लिया
तो वहाँ पे मैंने एक एग्रीमेंट किया ना, मैंने एक एग्रीमेंट किया, वो क्या बोलते हैं उसको, उस एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट, लीज डीड, ठीक है। तो वो कितने साल के लिए किया मैंने, 10 years के लिए, ठीक है। बट बिफोर 10 years, आफ्टर 5 years, मैंने किरण से वो जो जमीन है खरीद लिया। आई हैव परचेज दैट लैंड। तो जब मैंने वो लैंड परचेज कर लिया, तो जो लीज एग्रीमेंट था ना 10 years का, इट विल बी टर्मिनेटेड, इट विल बी कैंसल्ड, ओके, क्योंकि मैंने मर्ज कर लिया, ठीक है। सो बिफोर मर्जिंग, बिफोर टेकिंग द लैंड ऑन माई ओन नेम, I was the inferior because I was the, मैं क्या हूं, मैं लीजर हूं या लीजी हूं, हाँ, यस, और तुम हो लीजर, ठीक है। तो इसलिए मैं आई वॉज द इंफीरियर। जब मैंने तुमसे परचेज कर लिया वो लैंड, देन आई बिकेम द सुपीरियर, सो इट हैज बीन मर्ज्ड, एंड द एग्रीमेंट, जो लीज का एग्रीमेंट बनाया था, डीड बनाया था, that has been cancelled or that has been terminated, ठीक है। Is it clear? Any doubt? ठीक है, डाउट है? No. Online students, any doubt? No, ma'am. ठीक है, fine. किरण कांति बना दूंगी मैं है ना, किरण और कांति बना दूंगी, तो गोविंद और गीता बोल रहे। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जैसे किरण और एक कांति है, ठीक है। कांति और किरण के बीच में शादी होने वाला था, ठीक है, ठीक है, किरण और कांति के बीच में शादी होने वाला था। लेकिन कांति ने बोला किरण को कि तुमको क्या करना पड़ेगा, वो जो आकाश से तारे लेके आना पड़ेगा। तो वो तो परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, दैट वन कैन नॉट परफॉर्म, दैट इज इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस, सो ही कैन नॉट मैरी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, गोविंद मीन्स दे वांटेड टू मैरी ईच अदर, ओके। बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर मैरिज, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर मैरिज, गोविंद बिकम्स मैड, ठीक है, गोविंद पागल हो जाता है। सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, means समझ में आ गया, it has been terminated. Is it clear? Any doubt? So are you getting interested in Indian Contract Act? Did you understand Indian Contract Act? जितना तक मैंने पढ़ाया उस चीज में कोई भी डाउट है तुम लोग का? I want that you should go for this one, questions and answers today itself. Today itself. ठीक है, MCQs. If you have any doubt, please ask me by calling me. Either you can ask me in the next class or you may call me. ठीक है, लेकिन today itself तुम लोग को finish करना है, हाँ, Indian contract. ठीक है. Now next, by breach of contract. By breach of contract means, what is the breach of contract means? It means failure of a party to perform his obligation under a contract. ठीक है, parties fail हो जाता है अपना performance करने के लिए, अपना obligation fulfill करने के लिए, okay? Breach of contract may be actual breach, it may be anticipatory breach, actual breach or anticipatory breach, ठीक है। Actual breach, it occurs when during the performance of contract either party fails or refuses to perform
ठीक है, ठीक है. A agrees to deliver to B. A क्या है, B को प्रॉमिस किया कि B को क्या डिलीवर करेगा, 3 bags of salt on 8th of August. ठीक है. Now A fails to deliver on 8th August. So this is called actual breach of contract by A. समझ में आया? Any doubt? ठीक है. जैसे मैंने राइस का ही बोला ना, है ना, मैंने तुम्हें बोला कि मुझे 10 kgs ऑफ राइस चाहिए, ठीक है, तो तुमने बोला हाँ मैम मैं दे दूंगा. मैंने बोला कि आफ्टर 3 days आई नीड. लेकिन 3 days के बाद तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो तुमने मना कर दिया. तुमने बोला मैम मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था राइस, मुझे 300 पे चाहिए था. तो यू हैव टू डिलीवर द बैग्स ऑफ राइस, 10 kgs ऑफ राइस टू 300 एंड यू हैव रिफ्यूज्ड. ठीक है ना राज, तुमने रिफ्यूज कर दिया कि मैम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर यू द 10 kgs ऑफ राइस. तो ये क्या हुआ, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट. यू हैव रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्रैक्ट. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? अभी किरण सोच रहे कौन आएगा आकाश से तारे, है ना. अब सोचो, this is called by breach of contract means number 2 is anticipatory breach. Okay, when the party to the contract refuses to perform his part of contract before the actual time of the performance is due, called anticipatory breach. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, किरण को कांति से शादी करना था, ठीक है, किरण को कांति से शादी करना था. कितना इंटरेस्टेड है ये, किरण को कांति से शादी करना था. तो अब कांति भी बोला कि ठीक है किरण हम दोनों शादी कर लेंगे. तो जो दिन है, जैसे कल शादी है, ठीक है, कल शादी है और कांति क्या किया, दूसरे किसी के साथ, राज के साथ चला गया शादी करके. ठीक है, ओके. समझ में आ गया? So this is called anticipatory breach. Fine. A agrees to marry B. Before the agreed date of marriage, A marries C. This is called anticipatory breach. Is it clear? Clear, online students? Yes, ma'am. Okay. आज रोहित को आना था, रोहित ने मुझे बोला था कि आएगा, but he could not come. Anything. अब ये हो गया. Now discharge of contract finished. समझ में आ गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने फिनिश कर दिया. जो मैंने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब तुम लोग क्वेश्चंस यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक आफ्टर. What is the time? 3? हाँ, questions. Now shall we go for questions? क्या? Break. You need a break. Break? Without break. I have to complete today sales of goods act also. Yes. Okay, 2 minutes break. কি কৰিবা 2 minutes ব্ৰেকত? কি কৰিবা তোমালোকে ইমান ব্ৰেক লাগে? হা? কি কৰিবা? What you will do? This is online class. Huh? Okay, my next class I'm going to start now Sales of Goods Act. Okay? So I'm giving you 5 minutes break. After this, I will start Sales of Goods Act.
Okay, students. So first, let me discuss few questions with you. Okay. Now, voidable contract is one which is lawful, which is invalid, which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so. None of this. Which one it will be? C. क्यों C है? एग्जाम्पल दो voidable का.
मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एग्जाम्पल दो. अवॉइडेबल मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कंपेयर किया था. कब होगा, क्यों वैलिड है, आफ्टर दैट इट बिकम्स वॉइड. यस, कैन यू टेल मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनीबॉडी? देखो भाई देखो, नेट मैडम बंद से तो नहीं होगा. यस, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन मैडम? हाँ हाँ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन मैडम? yes. You just check out, you take out your page number. कितना है देखो, मुझे आँख से दिखाई नहीं देता है. हाँ, 80. Take out the page number 80 in your book. Have you taken out? Page number 80, 80. क्लास करने से नहीं होगा. Yes. Have you taken out? Page number 80. Page number 80. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, have you taken out page number 80? Page number 80. What is the question? First question. Voidable contract is one. Which option is one which is lawful, which is invalid, or which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so? कब तक वैलिड है? जब तक वैलिड है जब पार्टी अवॉइड नहीं किया. देखो, आई हैव एक्सप्लेन दिस वन एग्जाम्पल. चलो बोलो. What was the example? See children, if you will remember the example, it will be very easy to answer the questions. Okay? If you will forget the example, then you will not be able to answer the questions. Example तुम लोग को याद करना ही होगा, याद रखना ही होगा. So for that you have to watch these videos. Okay? Now मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आकाश इज ए पर्सन, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, मैं उस घर को सेल करना चाहती हूँ, लेकिन कोई दूसरा आदमी के पास. ठीक है, I want, but I did not think now. I'm not sure with my property that I'm going to sell my property. But yes, I'm thinking about that. तो आकाश आया मेरे पास, आके मेरे माथे पे क्या रखा? बंदूक रखा. बंदूक रख के बोला, yes ma'am, I need your this property. You have to sell this property to me. I need this house. At any cost I need this house. तो अब मेरा क्या हुआ यहाँ पे? कोअर्शन हुआ या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ? कोअर्शन हुआ, है ना? तो कोअर्शन जब मेरा हुआ तो मैंने क्या क्या साइन कर दिया? मैंने किस फोर्सफुली, मेरा वो फ्री कंसेंट नहीं था. आई हैव नॉट गिवन माई फ्री कंसेंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव परचेज्ड, आई हैव सोल्ड माई प्रॉपर्टी. किसने परचेज किया? आकाश ने परचेज किया, लेकिन फोर्सफुली. ठीक है, अब मेरा, मैं अगर
इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, किसके बीच में, मेरे और आकाश के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल का, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल का जो एग्रीमेंट हुआ, तो हम दोनों के बीच में जो हुआ, अब इसको अगर मैं अवॉइड करती हूं, इफ आई अवॉइड दैट वन, देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इफ आई विल नॉट अवॉइड, और मैं छुप छुप के मैं चली जाती हूँ कोर्ट पे, कोर्ट के पास जाके मैं बोलती हूँ कि आई वांट सम लीगल रिमेडी, तो कोर्ट बोलेगा यस दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, दिस इज अ voidable contract. So if it is a voidable contract, then what? Then you will definitely, who will get the legal remedy? I will get the legal remedy from the court. समझ में आया? समझ में आया? आया ना? हाँ, अभी कोई समझ में आया ना? ये valid कब तक रहेगा? If I will avoid, तब तक वैलिड रहेगा जब तक मैं अवॉइड करूंगी, इसको इग्नोर करूंगी कि छोड़ो भाई, आकाश ने ही लिया, चलो मैं, कौन जाएगा ये कोर्ट में, फिर कौन जाएगा कोर्ट में, बेच दिया छोड़ो, देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट जैसे ही मैं इग्नोर करके, मैं जैसे ही मैं कोर्ट के पास चली जाती हूँ, इफ आई विल गो टू द कोर्ट फॉर लीगल रिमेडी, then it will be called as a voidable contract. Is it clear to everyone? Any doubt? No. देखो तुम लोग का क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? अब मैं आँख से देखती नहीं वो अच्छे से, चश्मा भी नहीं लाई. I need the difference between an advertisement for sale and a proposal is, कौन सा होगा? एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल. प्रपोजल क्या है? प्रपोजल क्या है? हाँ, यस, ऑफर इज इक्वल टू प्रपोजल, और एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू यस, एक्सेप्टेंस क्या हुआ? एक्सेप्टेंस है, acceptance is equal to promise. Offer plus acceptance is equal to promise. Offer कौन दिया? Acceptor. Offer is the proposer. ठीक है? And the acceptance is the promiser. है ना? और उसके साथ अगर consideration मिल जाए, if there will be consideration with offer and acceptance, then it will be called as agreement. Then it will be called as an agreement. ठीक है? और अगर agreement enforceable by law है, then it will be called as contract. ठीक है? So the difference between an advertisement for sale and a proposal is that a proposal becomes a promise as soon as the party to whom it may accepts it, but an advertisement does not. ठीक है? In a book depot, a catalog of books. In a book depot, a catalog of books enlisting the price of each book and specifying the place where the particular book is available. ये क्या होगा? Invitation to visit the bookshop. ठीक है? An invitation to visit the bookshop. Is it clear? ठीक है? Now next, a catalog of the goods of a company for sale. A catalog of the goods of a company for sale
dash a series of offers, but only an invitation for offers. Is or is not? Is not. Is not a series of offers, but only an invitation for offers. A catalog of the goods of a company. Catalog বুজি পাইছা ন? তে তুমি অফাৰ এইটো কি দিছে ইনভিটেশ্যন হৈছে ন তুমি কেটেলগ চাইছা বুকছৰ সেইটো ইনভিটেশ্যন ইনভাইট কৰিছে দ্যাট ইজ কল মানে কি কেটেলগ তুমি চাইছা কিন্তু ইয়াত কি হৈছে আ কেটেলগ অফ দ্য গুডছ অফ এ কোম্পানী ফৰ চেল কোম্পানীত যেনেকুৱা গাড়ী এটা কোম্পানী আছে তাত কি হৈছে চেলছৰ কাৰণে এনেকুৱা কেটেলগ আছে তো কেটেলগটো ডেছ আ চিৰিজ অফ অফাৰ্ছ কি হয় is not a series of offers but only an invitation for offers. Etu offer nai dia. Offer dia jeneke etu kiniba niki enike. Specific. Offer will be specific. But when in a whole, as a whole jeti tumak diye jeneke catalog di dise ba tumak ya tumak decorate kori dise bostu bilak eneke thoi dise showroom tar pora tumi kiba eta heri koriba that is called invitation. Okay? Buji pala? Is it clear? Online Yes, students? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay, fine. আচ্ছা তোমালোকক মই এইটো জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ you just go through the questions at home okay if you have any doubt please ask me at any time okay is it clear online students please go through the questions of the book and if you have any doubt you just ask me in the next class or you can WhatsApp me okay you can text me that what you have doubt if you have any doubt you can text me fine Okay, ma'am. okay now we are going to the next topic that is called sales of goods act अच्छा जो sales of goods था वो किस में था where it was included पानी खुआ चलो पानी पियो sales of goods जो था वो किस में included था इसको चेहरा देख के मुझे हंसी आता है अच्छा सेल्स ऑफ गुड्स जो था वो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंक्लूड था इट वाज अर्लियर इंक्लूडेड इन द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 बट इन द ईयर ऑफ 1930 the sales of goods has been separated the sales of goods has been separated from the Indian Contract Act 1872 when in the year of 1930 okay 1st July 1930 the Sales of Goods Act has got a different legislation okay and it has become a new law okay and it came into force in the year of 1930 1st July ठीक है is it clear now goods जो होते हैं ना according to this Sales of Goods Act all the movable properties are included in the Sales of Goods Act no immovable property or no immovable goods are included in the Sales of Goods Act 1930 जो immovable property है just तुम लोग जानो ये this is required when you will go to where intermediate class then you will get this information जो Sales of Goods Act है क्या है Sales of Goods Act में क्या है Sales of Goods Act में आपका सिर्फ movable goods were included but in Transfer of Property Act
the immovable property or immovable goods were included. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन द ईयर ऑफ 1882. ठीक है, now you have to know this one. So here, in case of sales of goods act 1930, this growing crops क्या include होता है और क्या exclude होता है. ठीक है, include क्या होता है, growing crops. The things, मतलब यहाँ पे जो sales of goods act में जो movable है, movable goods है, उसको किस चीज को बोला गया है movable goods? The things which you can separate it from the earth, separated from the earth. टिप्पणी थोड़ी सा, पानी को. The goods, the things which you can separate it from the earth, that those things are called as movable property. Okay? Suppose growing crops को आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तोड़ के आप सेपरेट कर सकते हो, है ना, मिट्टी से तो सेपरेट कर सकते हो. So it will be called as goods under sales of goods act. Okay? Standing timber you have understood? पेड़, लंबा सा पेड़ होता है ना, उसको. ठीक है, which you can reuse for making furniture. Then grass. Okay? Next, old currency will be called as goods under sales of goods act. Okay? But you cannot take money or currency as goods, as movable goods. ठीक है, क्यों? Money or currency, they are required for purchasing goods only. They are required for purchasing goods only. So they will not be called as the movable property. Okay? Under the sales of goods act. ठीक है? Then water, gas, electricity, trademark you know ना, symbols, okay, designs. ठीक है? Then patent are the license. ऐसा होता है ना, जैसे invention हुआ उसका एक अलग सा license होता है ना, all these things. Goodwill, shares after allotment, stock. ठीक है? Is it clear? Now here, which are excluded? Excluded are the immovable property, house, flats. ठीक है? Then actionable claim मतलब जो secured नहीं है, unsecured debt. ठीक है, those are called actionable, means जिसके लिए आप action ले सकते हो, जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो for legal remedy. Okay, you can claim for that. Money, currency, you have understood. So these are under sales of goods act. Okay, so sales of goods act में only movable property will be called as the goods. No immovable property will be called as goods under sales of goods act 1930. ठीक है? मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ. Okay, now there is a difference between sale and agreement to sale. This is very important. You should know it, which things are called as sale and what is called agreement to sale. अच्छा, पहले ये जानो कि ये ascertain goods क्या है? What is called ascertain goods and unascertain goods?
Do you have an idea on this? Online students? No. Okay. So unascertain goods, जो unascertain goods है, those goods are in a bulk. बल्क में जो रहता है गुड्स उसको बोलते हैं अनएसर्टेन गुड्स. और बल्क से जब सेपरेट करके हम लाते हैं तो उसको बोलते हैं एसर्टेन गुड्स. अनएसर्टेन मीन्स गुड्स आर इन ए बल्क. जैसे एग्जांपल देती हूं मैं. बल्क जैसे मैं एक शोरूम में गई. मैं क्या शोरूम में गई? एक कार का शोरूम में. ठीक है. और मुझे एक कार खरीदना था, ब्रेजा खरीदना था. ठीक है. किरण को पता चल गया. नहीं, मैं ब्रेजा नहीं. अच्छा चलो, ब्रेजा खरीदना था. तो ब्रेजा खरीदना था. अभी यहाँ पे तो बल्क में बहुत सारा गाड़ी है ना. तो दैट विल बी, मैं वहाँ पे जाके आई, मैंने बोला कि मुझे एक गाड़ी खरीदना है. डीलर को मैंने बोला. तो मैंने एक एग्रीमेंट करके आया. क्या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट टू सेल. उसके साथ मेरा क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ. ओके. ठीक है. क्योंकि वो चीज़ सब बल्क में है. जब फिर एक गाड़ी जैसे ब्रेजा कार, एक जो मैं खरीदना चाहता हूँ ब्लैक कलर का, तो उसको जब सेपरेट करके मुझे दिया गया and I have purchased that one, और मैंने पेमेंट भी कर दिया, then it will be called as sale. ठीक है. समझ में आया? हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है. इस चीज को बोलता है जब आपका जो सामान है ना डिलीवरी हो जाता है ना. जैसे बल्क में कोई चीज है, those things are not in a state of delivery. वो डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है अभी तक. Those things are in a bulk. ठीक है. तो उसमें से कोई चीज सेपरेट करके मुझे एक चीज दिया गया, मैंने पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल. अंडरस्टूड? अभी जैसे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ तुमको, इजी एग्जांपल. मैं एक शॉप में गई, ग्रोसरी के शॉप में. ठीक है. और वहां पे मुझे क्या चाहिए? एक मिल्टन का वाटर बॉटल चाहिए. ठीक है. वहाँ पे बहुत सारा बॉटल्स है, मिल्टन का भी बॉटल्स है. तो वहाँ पे मिल्टन का जो बॉटल्स है दुकान पे वो बल्क में है ना. तो वहाँ से मुझे दैट वाज जो बल्क में है, डिलीवरी स्टेट में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट फॉर सेल. और जब बल्क से सेपरेट करके मुझे जब दिया गया, मैंने पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल. इज इट क्लियर? एनी डाउट? एंड दिस एग्रीमेंट टू सेल जो होता है ना, ये क्या होता है? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है. जो क्योंकि दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस बाकी है. दोनों ही पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस पेंडिंग है. वो हो रहा है, एक एक स्टेप लेके हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी. और जिसका परफॉर्मेंस हो गया है, ये क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? If both the parties will complete their obligations and they have already done their performance, so that is called what? Executed contract. And if any party, if he or she has the obligation left to do, has the performance, उसका एक साइडेड परफॉर्मेंस बाकी है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी. इज इट क्लियर? जैसे मैंने ऑनलाइन में देखो, मैंने अमेज़न में
मैंने देखा बहुत सारा साड़ीज देखा, आई हैव सीन वैरायटी ऑफ साड़ीज, तो वो बल्क में है ना, तो फ्रॉम दैट आई हैव चूजन वन साड़ी, ठीक है, एंड मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर प्लेस किया, तो अब ऑर्डर प्लेस किया तो अभी क्या वहां से ऑर्डर क्या किया, एक्सेप्ट किया, ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन परफॉर्मेंस होना बाकी है, मुझे पेमेंट करना बाकी है और वो उसका उनका डिलीवरी देना बाकी है, सो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? एनी डाउट? Now here you see, in case of sale, transfer of property मतलब ownership, okay, immediately at the time of making the contract. जैसे मैंने एक मोबाइल शॉप में गया, मोबाइल शॉप में मुझे एक मोबाइल चाहिए था, तो उन्होंने मुझे मोबाइल दिखाया, किरण की दुकान पे गया, किरण को बोला कि किरण दो एक मोबाइल दो, अच्छा से एक मोबाइल दो, तो किरण दिखाया मुझे, मैम ये अच्छा है, वीवो का एक अच्छा मोबाइल आया है न्यू, तो आप ये ले लीजिए. मैंने बोला ठीक है दे दो, तो मैंने ले लिया, एंड आई हैव गिवन द अमाउंट टू किरण, ठीक है, मैंने 30,000 किरण को दे दिया, और किरण बोला ठीक है आप मोबाइल ले जाओ, और किरण ने क्या किया, मेरे नाम से कैश मेमो लिख दिया, तो ओनरशिप चेंज हुआ ना, है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इट हैज बीन चेंज्ड, यस और नॉट, आई गॉट द ओनरशिप, ठीक है, बायर गॉट द ओनरशिप, सेलर हैज गिवन मी द ओनरशिप टू मी, तो अब परफॉर्मेंस क्या है, कंप्लीट है, इमीडिएटली वही जो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसी के समय, उस समय ही ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल. इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ओनरशिप क्या होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हुआ, जैसे मैं गई, कहाँ पे गई, डीलर के पास, मैंने एक गाड़ी पसंद करके आया, है ना, अब वहां पे क्या हुआ, वो उन्होंने बोला, जो डीलर है, डीलर ने बोला ठीक है आप ये गाड़ी पसंद किया तो आपको ये 2-3 मंथ्स लगेगा आपको डिलीवरी देने के लिए, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे मेरा क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है उस समय, जस्ट एक एग्रीमेंट हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है. और अगर मैं, ऐसा भी हो सकता है कि उस गाड़ी को द डीलर कैन सेल इट ऑल्सो टू सम अदर पर्सन, लेकिन यहाँ पे जो रीसेल का नहीं है चांस, क्योंकि इमीडिएटली मैंने खरीदा ना, है ना, मेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गया ना ऑलरेडी, है ना, समझ में आया. तो जैसे मैंने अपना क्या हुआ, क्या मोबाइल मैंने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल मैंने खरीद लिया, खरीद के मैंने किरण के पास बोला ये रखो तुम मोबाइल, और मैं बोली कि मैं आ रही हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मुझे मिल गया, मेरे पास क्या है, कैश मेमो है, तो मैं गई एक जगह दुकान में, ठीक है, और अगर बाय चांस वो मोबाइल खो गया, तो whose responsibility is this? Yes, because the ownership has been transferred to me. ठीक है? Is it clear? तो रिस्क ऑफ लॉस किसका है, बायर का है, सेलर का नहीं है. समझ में आया? अब किरण बोल सकता है किसी को आप रख के जाइए यहाँ पे मोबाइल, और वो इसे हटा दिया है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसका हो गया, बायर का हो गया. अंडरस्टूड. सो नाउ ए सर्टेन, यहाँ पे किसका होता है, सेलर का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है. ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक द रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहता है, जिसके पास गुड्स रहता है, गुड्स का पोजीशन रहता है, और जिसके पास अभी, जिसे बायर के पास ओनरशिप अगर नहीं आया है, तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट बी ऑन द बायर, इट विल बी द सेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है?
Now just in rem means rights against the whole world. किसका होता है rights against the whole world? Buyer का. जब उसके पास, when he will get the ownership, when he will get the title, when he will get the possession, he can sell it, he can destroy it, he can do it anything. Okay? तो उसके पास complete rights आ जाता है. ठीक है? Is it clear? This is called just in rem. Just in rem. लिख लो. Just in. This is very important. Just in rem means rights against the whole world. ठीक है? Whole world. ठीक है? Now just in personam मतलब rights against a specific person. Just in personam means right against a specific person, a particular person. ओके? ठीक है? क्लियर? किरण इधर क्या सोच रहा है? कावेरी आएगा या नहीं? और कावेरी गंज Okay, finished this one written. Now next one. Oh, right of resale. I have told you, no, this one. Right of resale not available with the seller. It is only with the buyer. And right of resale, the seller can resell the goods. Because ownership has not been transferred. Okay? ठीक है? समझ में आ गया ना? This is very important, okay? Next one. Okay, I'm listening. Okay, next topic, the sales of goods sector under में क्या है? Classification of goods. Okay. Under the Sales of Goods Act 1930, the goods are classified as 3 parts. First one, existing goods. Second one, the future goods. And third one, contingent goods. Okay? Now, existing goods are divided into again 3 parts. Specific goods, unascertain goods, and ascertain goods. Specific goods means no replacement. These are from the existing goods, but here the specific goods, suppose an antique piece जिसका कोई दूसरा replacement नहीं होता है, वो एक ही चीज है, यूनिक वन. ठीक है? अब राज ही है, राज का कोई दूसरा नहीं, अलग सा राज नहीं आ सकता है ना? So he is a specific good. है ना? Okay. Understood? Just taking example. So you have understood now? That is माने specific. Only one thing. It cannot be replaced by some other thing. Okay? जैसे एक ही ब्रेजर है, ब्रेजा कार है, उसका एक दूसरा ब्रेजर नहीं है मारुति का. ठीक है? समझ में आया ना? यूनिक वन. Mona Lisa, the famous painting, it cannot be replaced by some other thing. Okay? Is it clear? Next one, unascertain goods. Unascertain means the goods from the bulk. Okay? Goods from the bulk. जैसे गोदाम में कोई पड़ा हुआ है, कुछ भी बहुत सारा
bulk में कुछ भी, then you have taken, you have separated it, you have separated the goods from the bulk. Yes or not? You have separated the goods from the unascertain goods. So this is called the ascertain, means the separated one. The separated goods will be called as the ascertain goods, and the unascertain goods will be called as the bulk one. Okay? Is it clear? Any doubt? Okay. Then the future goods. Future goods, the goods to be produced or manufactured in the future. इसमें एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे मैं एक शॉप में गई. I went to a shop. ठीक है? I went to a shop and वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मैंने जाके मेरा एक बैंगल के लिए मैंने ऑर्डर दिया. बैंगल, अ गोल्ड बैंगल आई नीड. ठीक है? सो ये क्या है? ये प्रोड्यूस्ड फ्यूचर में मुझे करेगा ना. द means the goods are not ready for delivery. Yes or not? It will be produced in the future and it will be delivered in the future. So these are called as future goods. Okay? Contingent goods. To be or not to be, may or may not be. Contingent, what I said, contingent means do or no नहीं, ऐसे बोलना नहीं है. Contingent means not absolute. जो absolute नहीं है, means जिसका surety नहीं है. Okay, write it down. Okay, contingent event means there is no surety of the event. Contingent goods, there is no surety of the delivery of the goods. वो goods मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. Understood? ठीक है? अब मैंने क्या दिया था एग्जाम्पल, याद है कंटिंजेंट गुड्स का? Did you remember? That's why I'm telling you, please study at home. Contingent का क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? What example I have given? Huh? No. Huh? You forgot. Ship. है ना? Ship का अगर safe arrival हो गया, है ना, मैंने दिया था ना, तो वहाँ पे happening. और ship का अगर safe arrival नहीं हुआ तो वहाँ के non happening, है ना. So यहाँ पे भी same thing है. जैसे contingent goods का, अगर ship में मेरा goods है कुछ, उसका अगर safe arrival हो गया, then you will get the goods. Then the goods will be delivered to you safely. If the ships with my stock will not arrive safely, then you will not get the goods. Simple thing. Understood? ठीक है? समझ में आया? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? ठीक है, okay. So till this much clear? Any doubt? No doubt? Doubt नहीं है तो? Now next day, what I will teach you. Unpaid seller नहीं पढ़ाएंगे. Unpaid seller পিছত পঢ়াম. মই পঢ়াম ownership. I will teach you. Ownership is in the book only. This one I will explain you. Ownership. Okay? Fine.
So, my dear students, today here I am winding up the class. So, in our next class, we will meet once again. Thank you, one and all. Thank you, ma'am.